Today we have gathered with heavy hearts to pay tribute to a legendary figure, Disham Guru C. Sibu Soren, a visionary leader, former Chief Minister of Jharkhand and co-founder of Jharkhand Mukti Morcha, who left us on August 4, 2025. His life was a testimony to courage, struggle and dedication to the rights of the marginalized. To begin, I invite respected sisters and teachers to give floral tribute to the departed soul. Sisters and teachers, please. आदिवासी समाज रेन आयुर्या चाकवीरिया वीर सिबु सोरेन आबेंदो दिसुम गुरु मेंते होवेन युतुम कनम आबेंदो रेंगेने छान आदिवासी रेन भगवान बराबरी के तहलेना आदिवासी समाज के जागने वाले वीर योद्धा सिबु सोरेन आप दिसुम गुरु के नाम से भी जाने जाते हैं। आप गरीब आशाएं आदिवासी के लिए भगवान के बराबर हैं। नोआ पुरकुल भारत दिसुम रे हो ताहे तुलु आले रेंगेज ने छाय आदिवासी दो नुंगु महाजन जमींदार रेया आदि सासन रे बनता है लेना और नुंगु महाजन की गो आवेन रे बाबा दो को गोय ले दिया। इस स्वतंत्र भारत में भी हम गरीब आशाएं आदिवासी जमींदारों के गुलाम थे और यही जमींदारों ने आपके पिता की हत्या की। इना तायो गेले लाल उमरे आबेंदो सोनत सांताल समाज बेन बिनाव रखा के दा आर तेंगे छा आदिवासी में मी के कोआ और अपना आयदारी अपना हक देख नोआ जमींदार वीडियो दो तिंगो के टेके कोआ। इसके बाद भी 18 साल की उम्र में ही आपने सुन्नोद संथाल समाज का गठन किया और गरीब आदिवासियों को एकजुट कर अपने हक अधिकार और महाराज जमींदार के विरोध खड़ा किए। गेल आर्यल साय एआई बार बछरे आबेंदो अपनार गाते साउते झारखंड मुक्ति मोर्चा संगठन बनाव कते उना संगठन साउते की गेल मोर नवंबर माहरे नवा झारखंड पोनत दिसों दो बनाव रकाब के दा। सन 1972 आपने अपनी साथी के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की। इस पार्टी माध्यम से जमीन महाजनों और जमींदारों से ली। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जरिए ही आपने एक नए राज्य झारखंड को 15 नवंबर 2000 नया राज्य झारखंड को बनाया। इरा में पोछरे दिल्ली रिया गंगारा रान उराखो नुआ दिसों मिका कते बेन हना दिसों सोरपुरी बेन चलाना और नुआ साउते की मी राजनीति रिया जुग हो मुचेदना। 81 की उम्र में ही आप दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल में इस धरती को छोड़ के स्वर्ग लोक में चले गए। Jharkhand's legendary figure Sri Shibu Soren was born on 11 January 1944 in the Nemra village of Ramgarh district. He belonged to the Santhal community and was popularly known as Disham Guru, which means a nation's and a society's favor. Mr. Soren leaves behind a legacy that reshaped the Jharkhand's politics. The Jharkhand Mukti Morcha patriarch is one of the most enduring political figures in the country's tribal regional political landscape. According to Mr. Soren's family, his early life was marked up by personal tragedy and great socio-economic struggles. At the age of 15, Mr. Soren's father, Subaran Soren, was allegedly killed by the thugs employed by the moneylenders in 1957. This left a deep impact on him and proved to be a catalyst for his future political activism. The Tribal Titans political voyage. Jharkhand Mukti Morcha's journey started when Mr. Shibu Soren with Bengali Marxist trade unionist Mr. A.K. Roy and Kurmi Mahto leader Vinod Bihari Mahto founded the party during public meeting in Dhanbad in the year 1973.
Soon, Jharkhand Mukti Morcha became a prominent political voice for the demand of a separate tribal state. Apart from his grassroots mobilization against feudal exploitation, the successful formation of Jharkhand on 15th November 2000 gave a boost to his political and social influence. But Mr. Soren's influence was not confined to state politics. Mr. Shibu Soren's parliament legacy. Mr. Soren was elected for the Lok Sabha 8 times and served as Rajya Sabha MP for 2 terms. He was also Union Coal Minister 3 times. Mr. Soren has remained a towering pivotal figure in Jharkhand's politics. He served as Chief Minister of Jharkhand thrice from the year 2005 to 2010. The leader also survived an assassination attempt in 2007. For many in Jharkhand and in India, Shri Shibu Soren remains a symbol of the long-fought struggle for identity and self-rule, a legacy that continues to the next generation. His life has been a symbol of struggle, dedication and commitment towards public welfare, especially for Jharkhand. Antim Johar Shibu Soren ji. यह कहानी है झारखंड की मिट्टी में जन्मे उस बालक की जिसने गरीबी, भूख और अन्याय को अपनी आंखों से देखा। वह बालक बड़ा होकर न केवल अपने गांव या परिवार के लिए बल्कि पूरे झारखंड और भारत के आदिवासी समाज की आवाज बने। यह है शिबू सोरेन की कहानी, एक साधारण बच्चे का असाधारण सफर जो जंगलों से उठकर देश की संसद तक पहुंचे। माँ, हमारे गांव के लोग इतने गरीब क्यों हैं? बेटा, यह जमीन और जंगल तो हमारे हैं, लेकिन सत्ता में हमारी कोई आवाज नहीं। जब तक कोई हमारे लिए नहीं लड़ेगा, हालात ऐसे ही रहेंगे। शिबू सोरेन का बचपन गरीबी और संघर्ष से भरा था। उनके पिता जमीन और जंगल बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे, पर एक दिन अन्याय की ताकतों ने उन्हें हमेशा के लिए छीन लिया। यही दर्द छोटे शिबू को मजबूत बना गया और आगे चलकर वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बना। यह जमीन अब हमारी है, तुम्हें और तुम्हारे परिवार को यहाँ से जाना होगा। यह जमीन हमारी है, हमारे पूर्वजों की है। इसे छीनने का हक तुम्हें किसने दिया? हक ताकत से मिलता है और तुम्हारे पास ताकत नहीं है। बाबा! बेटा, डरना मत, अन्याय के आगे झुकना मत, अपने लोगों के लिए हमेशा लड़ना। उस मासूम शिबू की आंखों के सामने उसके पिता शहीद हो गए। यह चोट गहरी थी, लेकिन इसी दर्द ने उसे मजबूत बना दिया। यह दुख आगे चलकर उसका सबसे बड़ा ताकत बना। अब यह कहानी एक अनाथ बेटे की नहीं, बल्कि एक योद्धा की बनने जा रही थी। वही बेटा जो आने वाले समय में झारखंड आंदोलन का चेहरा बना, श्री शिबू सोरेन। समय बीत गया। छोटा शिबू अब जवान हो चुका था। उसने बचपन से गरीबी और अन्याय देखा था। अब वह गांव के किसानों और मजदूरों के बीच उनकी तकलीफ सुन रहा था और अपने मन में बदलाव का संकल्प ले रहा था। हम दिन रात मेहनत करते हैं, पर साहूकार और ठेकेदार हमारी कमाई छीन लेते हैं। हम जंगल से लकड़ी, पत्ते, फल लाते हैं, लेकिन हमें उसका सही दाम तक नहीं मिलता। हमारी मेहनत की कोई कीमत नहीं समझी जाती। हम बिहार का हिस्सा है, लेकिन हमारी पहचान, हमारी संस्कृति, हमारी बोली सब अनसुनी कर दी जाती है। अब हमें अपनी अलग आवाज उठानी होगी। अगर हम चुप रहे तो हमारा अस्तित्व मिट जाएगा। संघर्ष से निकला आंदोलन अब एक नए मोड़ पर था। गांव वालों ने तय किया कि
कि अपनी आवाज दिल्ली तक पहुंचाने के लिए शिबू सोरेन को चुनाव लड़ना होगा। भाइयों और बहनों, हमने जंगल और जमीन के लिए लड़ाई लड़ी, हमने अपने अधिकार मांगे, लेकिन अब समय है कि हमारी आवाज संसद में गूंजे। मैं वादा करता हूं, संसद की हर कुर्सी तक मैं झारखंड की पुकार पहुंचाऊंगा। शिबू बाबू, हम सब आपको वोट देंगे। आप हमारे बेटे हैं, आप ही हमारी उम्मीद है। हाँ, हम सभी आपको वोट देंगे। गांव-गांव का भरोसा अब वोट में बदल चुका था। 1980 के चुनाव में जनता ने अपना नेता चुना, श्री शिबू सोरेन। मतदान संपन्न हुआ। अब परिणाम घोषित किया जाता है। दुमका संसदीय क्षेत्र से श्री शिबू सोरेन विजय घोषित किए जाते हैं। झारखंड की शान शिबू सोरेन, शिबू बाबू जिंदाबाद। आज यह जीत मेरी नहीं है, यह जीत उस मजदूर की है जिसने दिन रात खून पसीना बहाया। यह जीत उस किसान की है जिसने पीठ काटकर भी वोट डाला। यह जीत झारखंड की मिट्टी की है। और इस तरह 1980 में बिहार का सपूत शिबू सोरेन जनता की उम्मीदों को लेकर संसद में पहुंचा। उनकी जीत गांव की जीत थी, संघर्ष की जीत थी। संसद में उन्होंने आदिवासी समाज, किसानों और मजदूरों की आवाज को बुलंद किया। उन्होंने भूमि अधिकार, जंगल जमीन की सुरक्षा और अलग झारखंड राज्य की मांग को राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाया। श्री शिबू सोरेन ने हर भाषण में यही कहा कि जब तक झारखंड के लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, मेरा संघर्ष जारी रहेगा। समय बीतता गया। शिबू सोरेन अब सिर्फ गांव के नेता नहीं रहे, वे पूरे इलाके की आवाज बन चुके थे। गांव-गांव, जंगल-जंगल में लोग इकट्ठा होने लगे। अब मांग थी एक अलग राज्य, एक अलग पहचान, जहां झारखंड के लोग अपने हक से जी सके। और इस तरह शुरू हुआ झारखंड आंदोलन, जिसमें शिबू सोरेन के साथ कई और नेताओं ने भी अहम भूमिका निभाई। बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, निर्मल महतो, विनोद बिहारी महतो और A.K. रॉय। हम अलग झारखंड राज्य चाहते हैं। भाइयों और बहनों, कई सालों से हम खेतों में पसीना बहा रहे हैं, जंगल में मेहनत कर रहे हैं, पर कभी हमें सम्मान नहीं मिला। हमारी संस्कृति को नजरअंदाज किया गया, हमारी बोली को दबाया गया, हमारे अधिकार छीने गए। अब और नहीं, जब तक हमें अपनी पहचान नहीं मिलेगी, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। यह हमारी जमीन है, यह हमारा जंगल है, यह हमारी संस्कृति है और इन्हें मान्यता दिलाना ही होगा। यह लड़ाई सिर्फ झारखंड की नहीं, बल्कि हर मेहनतकश और शोषित इंसान की इज्जत और पहचान की लड़ाई है। हमने वर्षों तक देखा है कि हमारी भाषा, हमारी संस्कृति और हमारी मेहनत का कोई सम्मान नहीं हुआ। अब समय आ गया है कि हम सब एकजुट हों और अपने हक के लिए मजबूती से खड़े हों। झारखंड की जनता की आवाज अब कोई दबा नहीं सकता। यह सिर्फ आज का आंदोलन नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की उम्मीद और हमारे जंगल, खेत और जल की सुरक्षा का सवाल है। हमारे संघर्ष का हर कदम हमारी धरती और हमारी संस्कृति के लिए है। हमने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं ताकि झारखंड के लोग अपने अधिकार पा सके। यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। एक दिन हमारा सपना साकार होगा, झारखंड को उसकी असली पहचान मिलेगी और हर आदमी को न्याय मिलेगा। आदिवासी और मूलवासी भाई बहनों, अगर हम आपस में बटे रहेंगे तो हमें कभी न्याय नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हम एकजुट हो गए तो दुनिया की कोई ताकत हमें अलग झारखंड देने से रोक नहीं पाएगी। आज का यह आंदोलन हमारी एकता की मिसाल है। आइए कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ें। साथियों, याद रखो, यह आंदोलन सिर्फ सीमाओं का नहीं, यह आंदोलन इंसाफ का है। झारखंड के मजदूर, किसान और गरीब मजलूम वर्ग दशकों से शोषित होते आ रहे हैं। जब तक हर हाथ को काम और हर पेट को रोटी नहीं मिलेगी, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। अलग झारखंड राज्य बनेगा तो यहाँ के संसाधन यहाँ के लोगों के काम आएंगे।
बाहर के पूंजीपतियों की जेबें भरने के लिए नहीं। हम न्याय चाहते हैं और न्याय लेकर रहेंगे। झारखंड अलग राज्य बनाओ, अलग बनाओ, अलग बनाओ, आदिवासी एकता जिंदाबाद। आखिरकार वर्षों के संघर्ष और बलिदानों के बाद वह क्षण आया जिसका सपना झारखंड की मिट्टी ने देखा था। 15 नवंबर वर्ष 2000 भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर बिहार से अलग होकर झारखंड भारत का 28वां राज्य बना और झारखंड को मिला अपना पहला मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी। यह दिन हर झारखंडी के इतिहास में अमर हो गया। आज का दिन हर झारखंडी के लिए गर्व का दिन है। ये राज्य हमारे पुरखों के बलिदान और हमारी मेहनत का परिणाम है। अब हमें मिलकर झारखंड को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाना है। साथियों, यह जीत सिर्फ नेताओं की नहीं, बल्कि हर उस किसान, हर उस मजदूर, हर उस माँ बहन की है जिन्होंने वर्षों तक संघर्ष किया। आज झारखंड को पहचान मिला है, लेकिन याद रखिए, अब हमारी असली जिम्मेदारी शुरू होती है। हमें इस राज्य को न्याय, शिक्षा और विकास की मिसाल बनाना होगा। जोहार जोहार, झारखंड जिंदाबाद, भारत माता की जय। भारत और झारखंड के आदिवासी आंदोलन के गुरु दिशोम गुरु शिबू सोरेन अब हमारे बीच नहीं रहे। उनका निधन 4 अगस्त 2025 को हुआ, लेकिन उनकी लड़ाई, उनका आदर्श और उनकी आवाज हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। दिशोम गुरु ने हमें सिखाया, लड़ना केवल पुरुषों का काम नहीं, हर महिला, हर माँ और बहन अपनी आवाज उठा सकती है। आज हम उनके आदर्श को अपनाकर अपने गांव और शहर में न्याय और समानता के लिए खड़ी होंगी। दिशोम गुरु हमारे बीच नहीं है, पर उनका संघर्ष, उनका साहस और उनके आदर्श हमें प्रेरित करते रहेंगे। हम उनकी तरह हर अन्याय और अन्यायपूर्ण सत्ता के खिलाफ खड़े होंगे। हम उनके सपनों को पूरा करेंगे, एक ऐसा झारखंड जहां शिक्षा, न्याय और अवसर सबको मिले। शिबू सोरेन अमर रहे, झारखंड आंदोलन अमर रहे, आपके आदर्श हमेशा जीवित रहे। भारत माता की जय। The journey from a small village called Nemra in Ramgarh to the parliament was not easy for Shibu Soren. Yet with courage and determination, he became a voice for tribal rights. At 18, he started a youth group to fight for tribal rights. He hid and escaped arrest while leading protests. Guruji loved Santhal music and dances, joining his community in cultural events. He built Shibu Ashram in Tundi to help displaced villagers. Once he escaped police by blending into a festival crowd. Inspired by tribal hero Birsa Munda, he founded Jharkhand Mukti Morcha on Birsa Munda's birthday. As a parliamentarian, he raised issues of tribal welfare, land rights, and education for the underprivileged. He also served as the Chief Minister of Jharkhand, where he worked towards social justice and the upliftment of marginalized communities. Shibu Soren's efforts play a key role in the movement that led to the creation of Jharkhand in the year 2000. This story shows Guruji's deep love for his people and his fearless spirit. Thank you.